Okay. Okay. So fx is equal to sine hyperbolic x f0. This is f of x sine hyperbolic x 0 e raised to power x minus e raised to power minus x upon 2. If I put 0 over there, 0 minus e raised to power minus 0 upon 2, it will become 1 minus 1 upon 2. 1 minus 1, 0 upon 2 will be 0. Hamza Shafi 61459. Yes. Okay. Then f dash x is equal to cos hyperbolic x. So its derivative, the derivative of this one will be e raised to power x plus e minus e raised to power x, e raised to power minus x. The derivative of minus x will be minus 1, minus into minus will be plus, plus e raised to power minus x upon 2. So this is cos hyperbolic x. F dash 0, it will become e raised to power 0 plus e raised to power minus 0 upon 2. It will become 1 plus 1, 2 upon 2. It is equal to 1. So that will become f dash 0 will become 1. In the same way, Sayyada Namish Ali 64179. In the same way, the second derivative, the cos hyperbolic derivative will be sine hyperbolic derivative. And f dash 0, the derivative of sine hyperbolic, the derivative of this one will be 0. This is second derivative. The third derivative, cos hyperbolic, and the third derivative of 0, the derivative of cos hyperbolic will be 1. Then the fourth derivative will be sine hyperbolic, and the fourth derivative is equal to 0. The derivative of sine hyperbolic, the derivative of sine 0, sine hyperbolic 0 is 0. Then the fifth derivative, cos hyperbolic, and the fifth derivative at 0, the cos hyperbolic is equal to 1. So there are the remain only three terms, the remaining are 0. Now I will put in the formula f of x is equal to sine hyperbolic x. F of x is equal to sine hyperbolic x. F of 0 is 0 plus x f dash 0, f dash 0 is equal to 1 plus x square upon 2 factorial f double dash 0, f double dash 0 is equal to 0 plus x cube upon 3 factorial f triple dash 0 is equal to 1 plus x4 upon 4 factorial. Fourth derivative 0 will be 0 plus
x5 upon 5 factorial. F fifth derivative 0 will be 1, and so on. 1 0, 1 non-zero, 1 0, 1 non-zero, 1 0, 1 non-zero, 1 0, etc. So this will become 0, x into 1 will be x, 0 into this one will be 0, 1 into x cube upon 3 factorial will be x cube upon 3 factorial, then this is 0, then x5 upon 5 factorial, and so on. So only the odd terms are there. X is to power 1, x is to power 3, x is to power 5, x is to power 6 will not be there, x is to power 7, x is to power 9, etc. Only the odd powers of x are there. Only the odd powers of x are there. Only the odd power of x are there. So this is the expansion of sine hyperbolic x. Other we may write, if you are interested, it will be x7 upon 7 factorial, then x9 over 9 factorial, and so on. This is an infinite series. X cube upon this is x 0 plus x into 1 will be x. 0 into x square upon 2 factorial will be 0. Then x cube into 1 will be x cube upon 3 factorial. Then 0 x4 will be 0. Then 1 into x5 upon 5 factorial, x7 upon 7 factorial, x9 upon 9 factorial, and so on. This is sine hyperbolic x. This is sine hyperbolic x. So these were the Maclaurin series and the Taylor series. Taylor series and Maclaurin series. Now sometimes these all are of the single functions. These all are of the single function. Now if they are double functions, the product of two functions, how to expand the product of the two functions. How to expand the product of the two functions in Maclaurin's or in Taylor series. Generally in Maclaurin series. So we are doing the next exercise, exercise 11.9. Exercise 11.9. Exercise 11.9. Question number 7. Find the Taylor series at x equal to 0
Taylor series at x equal to 0, that means it will become the Maclaurin series. If A is 0, it will become Maclaurin series. Find the Taylor series at x equal to 0 for the function in question 7 to 18. So we are doing question number 7, x e raised to power x. We have to expand x e raised to power x in Taylor series at a equal to 0. When a is equal to 0 in Taylor series, it will become the Maclaurin series. So that means we have to expand in Maclaurin series. When a is equal to 0, so that means this is the Maclaurin series. So this is the product of two functions. We will not use u into v formula. Remember, when we have to expand in the Maclaurin series or the Taylor series of a product of two functions, we will find the expansion of each function separately. We will not use the formula of u into v. We will find the product of both the functions separately. The product of x and product of e separate. The expansion of x, the Maclaurin's or Taylor's expansion or the Maclaurin's expansion, whatever it is. So we have to find separately the expansion of x and the expansion of e raised to power x separately, and then we multiply both the expansions. And generally, if it is the algebraic function, if it is a single algebraic function just like x, x square, x cube, etc., so their expansion will be the same. The Maclaurin's expansion of x will be the x. In the same way, the Maclaurin's expansion of x square will be the same, x square. As I have told you, we have done one question, x4 minus, that was a question, x4 minus 12x square cube plus x square plus 5, etc. That was the question we have done. So the answer was the same. Their expansion was the same. Here also, when it is x, x square, the expansion of this one will be the same. So it means there is no need to find the expansion of this one. There is no need to find the expansion of this one. We will find the expansion of logarithmic function, exponential function, or trigonometric function, not the algebraic function. If this is the simple algebraic function, no need to find the expansion because their answer will be the same. This is the reason we are not finding the expansion, because that is the waste of time. The answer will be the same as it is the function. Therefore, we are not finding the expansion. But if it is 1 upon x, 1 upon x square, etc., so their expansion can be found. Their expansion can be found because they are infinite expansion. Their expansion will be infinite. Okay. So there is no need to find the expansion of x. We will find the expansion of e raised to power x. And then we will multiply x with the expansion of e raised to power x. So we will take f of x is e raised to power x, not x. Then at a0, f0, e raised to power 0 will be 1. Then f dash x, again e raised to power x. Hyder Ali, 64068. Okay. Now I will find the expansion of this one.
e raised to power x, f of x, e raised to power x, f of 0, that is 1, plus x f dash 0, f dash 0 is 1, plus x square upon 2 factorial, f double dash 0 is equal to 1, plus x cube upon 3 factorial, f triple dash 0 will be equal to 1, x4 upon 4 factorial, fourth derivative will be 1, all are 1, and so on. It will become e raised to power x will become 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus x4 upon 4 factorial and so on. This is the expansion of e raised to power x only. Now we have to find the answer of this one, x e raised to power x. So we will multiply this by x e raised to x. On the right side, on the left side, x e raised to power x. On the right side also x into 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus x4 upon 4 factorial and so on. If we multiply by x, it will become x plus x square plus x cube upon 2 factorial plus x4 upon 3 factorial plus x5 upon 4 factorial and so on. So this is the final answer, the final expansion of x e raised to power x. The expansion of x e raised to power x. The expansion of x e raised to power x will be x plus x square plus x cube upon 2 factorial plus x4 upon 3 factorial, x5 upon 4 factorial and so on. So just remember, when we have the product of two functions and we have to find the expansion of this one, so we will choose we have to find the expansion of both the functions separately. The expansion of x separately, the expansion of ex separately. Then we multiply both the expansions. Here, if we expand x separately, the answer will be x. Therefore, I did not expand x because the answer will be the same. As we have already done one question, that was x raised to power 4 minus 12 x raised to power 3 minus 5x plus minus plus 4, etc. That was the question, and the expansion of that question is the same. Therefore, I did not expand this one. I remain as it is, and I found the expansion of e raised to power x. The expansion of e raised to power x is 1 plus x square upon 2 factorial. This is the expansion of e raised to power x. 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus x4 upon 4 factorial and so on. Then I multiplied this expansion with the expansion of x. The expansion of x is x. The answer is the same. So I multiply this one x on both the sides, this side x and this side also with x. So now it will become x e raised to power x, the same function whose expansion is required. And when I multiplied with this one, it will become x plus x square plus x cube upon 2 factorial plus x4 upon 3 factorial plus x5 upon 4 factorial and so on. So this is the final answer. Here you have to remember that you must remember that if we have the product of two functions, don't take the product of two functions and use the derivative u into v formula. The whole will be wrong. If you take u into v formula, your whole answer will be wrong. You will not get the correct answer.
फंस जाओगे बेटा अगर यू इंटू वी का फार्मूला यूज किया यहां आपने। यू इंटू वी का फार्मूला यूज नहीं करना, हर एक का अलग अलग एक्सपेंशन निकालना है। ई रेज़ टू पावर एक्स का अलग आपने एक्सपेंशन निकालना है और एक्स का अलग एक्सपेंशन निकालना है। और एल्जेब्रिक फंक्शन अगर एक्स एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो एक्सेट्रा, तो उनके यही एक्सपेंशन होते हैं, इसलिए इसलिए इनकी एक्सपेंशन निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगे। इनके एक्सपेंड भी करेंगे तो यही आंसर रहेगा। तो सिर्फ आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या 1/x 1/x स्क्वायर टाइप के फंक्शन हो उनको एक्सपेंड करना है। सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन को एक्सपेंड नहीं करना, उनको एज इट इज करना। तो इनको एक्सपेंड कर देंगे दूसरे को और एक्सपेंड करके उनका जवाब निकाल लेंगे फाइनल आंसर। उससे फिर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स है यहाँ, या एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है या 3x स्क्वायर है, जो भी है उससे हम इसको दोनों साइड पे इस तरफ भी और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। जैसे यहां मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका फाइनल आंसर ले लिया, राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट पे एज इट इज रहने दिया, ये हमारा क्वेश्चन है। और राइट पे उसका एक्सपेंशन आ गया। और अगर ये दोनों, ये भी साइन एक्स है, ये ई रेज़ टू पावर एक्स है, तो दोनों का एक्सपेंड करना है और दोनों के एक्सपेंशन को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट साइड पे इनके एज इट इज फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड पे उनके एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका आंसर निकालना है। और एल्जेब्रिक फंक्शन है सिंपल वाला, तो उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है। और दोनों अगर एक एक्सपोनेंशियल है एक, तो हम एक्सपेंड किसको करते हैं, एक्सपोनेंशियल को, लॉगरिथमिक को या ट्रिग्नोमेट्रिकल को, उसको एक्सपेंड करते हैं, वो एक्सपेंड हो सकते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन एक्सपेंड नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं। हाँ, एल्जेब्रिक फंक्शन अगर ऐसे हो 1/x यानी अपॉन में हो, एक्स जो है अपॉन में हो, तो वो फिर एक्सपेंड हो जाते हैं, उनको एक्सपेंड करना पड़ता है। सिंपल एक्स है, एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, ये ऐसे ही एज इट इज रहेंगे, तो उनको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक्सपेंड करने के बाद दूसरे फंक्शन को। तो याद रखना। एक और करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। मैं दोबारा बता रहा हूं भाई, आज जो है मैं अपलोड करूंगा शाम में या रात तक ये असाइनमेंट 2, और वो 3 दिन में आपको सॉल्व करके उसको वापस अपलोड करना है एलएमएस पे। एलएमएस का आपको पता है आजकल बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उसको जितना जल्द हो सके आप कल ही करके उसको डाल दें। आखिरी मोमेंट का इंतजार न करें कि आखिरी मोमेंट होगा तो आखिरी मोमेंट होगा तो हम उसको डालेंगे उस पे एलएमएस पे, आखिर में कर लेंगे। जैसे आप आमतौर पर स्टडी में करते हैं बच्चे के, इम्तिहान होंगे जब स्टडी कर लेंगे। तो आपको पता है एलएमएस पे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको करने की कोशिश करें। आप कल कर लेंगे, कल डालें, कल प्रॉब्लम हुई परसों डाल दें, तरसों डाल दें, 3 दिन आपके पास होंगे, फिर जब भी एलएमएस सही हो उसी वक्त डाल दें। ये मुझसे मत पूछे ईमेल पे भेज दूं, व्हाट्सएप पे भेज दूं, ये कर दूं वो कर दूं, वहां मैं नहीं चेक कर सकता भाई, मैं पहले भी बता चुका हूं। वहां मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इनको तलाश करना, मेरी अपनी भी मेल्स होती हैं। तो इसको एलएमएस पे ही डालना है आपने, और इसको फौरन से फौरन कल ही कर लें उसको, और कल ही डालना शुरू कर दें। कल हो जाता है ठीक है, परसों वरना परसों डाल दें, जिस वक्त भी एलएमएस से 24, हर रोज तो पूरा हफ्ता तो खराब नहीं रहेगा, 3 दिन किसी वक्त भी सही होता है वो, तो उसी वक्त डाल दें आप, जब भी एलएमएस सही हो उसी वक्त उसको अपलोड कर दें। बना के रख लें फाइल पीडीएफ में, और ऐसी फाइल होनी चाहिए जो ओपन भी हो। पीडीएफ में फाइल बनाए और इमेज भी पढ़े जाने चाहिए, उसकी पीडीएफ में फाइल बनाए, उसको फिर आप अपलोड, उसको पीडीएफ में फाइल बना के उसको ओपन करके देखें ओपन हो भी रही है नहीं, अपने किसी दूसरे ईमेल एड्रेस पे भेज के देख लें, और वहां अपने पास ही, किसी और के पास भेजने की जरूरत नहीं है, उसको अपने ही ईमेल एड्रेस पे भेजें और फिर उसको ओपन करके देखें वो ओपन हो भी रही है कि नहीं हो रही। वहां ईमेल पे जाने के बाद अगर ओपन हो रही है तो फिर आप उसको एलएमएस पे अपलोड कर दें। तो ये तरीका होता है बेटा, ये नहीं कि आप आखिरी वक्त में लेके बैठ जाओ फिर वो एलएमएस काम ना कर रहा हो, तो ये एलएमएस तो काम नहीं कर रहा, मैं क्या ईमेल कर दूं या व्हाट्सएप कर दूं, ये कर दूं वो कर दूं,
भाई ये कोई इतना 10 सवाल हैं, 2-2 मिनट के, 5-5 मिनट के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट में हो जाएगा। तो वो आप कर ले, फौरन करने के बाद उसको कन्वर्ट करें और उसको चेक करें कि ओपन भी हो रही है कि नहीं हो रही पीडीएफ में, और वो पीडीएफ में ओपन होती है तो फिर आप उसको भेज दें मेरे पास। एलएमएस पे ही अपलोड करना है, मुझसे पूछने नहीं पूछने बैठ जाना आखिरी वक्त में कि उसको ईमेल कर दूं, उसको व्हाट्सएप कर दूं, उसको ये कर दूं, उसको वो कर दूं। एलएमएस काम क्यों, क्या एलएमएस काम नहीं कर रहा। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8, दैट माइट बी द लास्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीक में आपका क्विज होगा, नेक्स्ट वीक में आपका क्विज होगा भाई, डिफरेंशिएशन का। आप उसके लिए तैयार होके बैठे, आप उसके लिए पावर का या नेट का जो भी है वो आप तैयारी कर ले उसके लिए। ये नहीं कि अब वो मेरा पावर नहीं है मेरे पास तो नेट नहीं चल रहा, मेरे पास ये नहीं चल रहा, मेरे पास वो नहीं चल रहा। हाँ, एलएमएस में प्रॉब्लम हुई जो सबके लिए होगी, आप फिर तो कुछ मैं उसका कुछ ऑल्टरनेट सोचूंगा, वरना मैं कोई ऑल्टरनेट नहीं दूंगा भाई। एलएमएस काम कर रहा है, आपका नेट काम नहीं कर रहा, आपके पास पावर नहीं है, कल से बिजली गई हुई है, परसों से बिजली गई हुई है, तो ये आपने इंतजाम करके रखना है। उसको आप इसके लिए इसके थ्रू भेजे। आप ये क्या आपका सेल फोन है, मोबाइल फोन के जरिए आप उसको अपलोड कर दे एलएमएस पे। तो कोई ना कोई आपने, ये आपका मसला है, उसको कोई ना कोई ऑल्टरनेट आपने उसको करके रखना है। मैं पहले ही बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज होगा, आप अपने साथियों को भी बता दीजिए, आपने उसका इंतजाम करके रखना है। हाँ, नेट का कोई इशू हुआ तो वो अलग बात है, वो सबके लिए होगा फिर। लेकिन किसी पर्सनल एक बंदे के लिए, दो बंदे के लिए, तीन बंदों के लिए कोई इशू आ रहे हैं तो वो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं भाई, वो आपने खुद उसको अरेंज करना है, खुद आपने अपने प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो मैंने साइन एक्स को वो कर लेना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज लेने देना है, एफ ऑफ एक्स हमने साइन एक्स ले लेना है। एफ जीरो साइन जीरो विल बी जीरो, एफ डैश एक्स कॉस एक्स, एफ डैश जीरो कॉस जीरो विल बी वन, एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश जीरो will be minus sine 0 will be 0, f triple dash x minus cos x, f triple dash x 0 minus cos 0 is equal to minus 1. Fourth derivative minus cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये ट्रिपल डैश था और ये फोर्थ है, फोर्थ डेरिवेटिव है, साइन 0 विल बी 0. फिफ्थ डेरिवेटिव, कम से कम 3 टर्म्स आपको नजर आनी चाहिए, ये 3 तो 0 हो जाएंगी, आंसर में कम से कम 3 टर्म तो होनी चाहिए। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव ले रहा हूं ताकि 3 टर्म मुझे नजर आ जानी चाहिए, ये क्योंकि ये 0 है, ये 0 हो जाएगी। तो दिस विल बिकम cos x, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 cos 0 विल बी 1। ये हमारे पास आ गए। अब हम इसको sin x को एक्सपेंड करेंगे, और जब वो फाइनल हो जाएगा sin x का एक्सपेंशन, उसको फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। तो sin x will become f0 will be 0 plus x, f dash 0 will be 1 plus x square upon 2 factorial
f double dash 0 will be 0. X cube upon 3 factorial. F triple dash 0 will be -1. Then x4 upon 4 factorial. Fourth derivative will be 0 plus x5 upon 5 factorial. F50 will be 1 and so on. ये क्या आ जाएगा sin x, ये 0 हो गया, ये x बचा, ये भी 0 हो गया, ये माइनस एक्स क्यूब बचा, ये भी 0 हो गया, x5 बचा एंड सो ऑन. अब हमने इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ये साइन एक्स है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम. एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. अब मैं यहाँ लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ. एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये x5 हो जाएगा अपॉन 5 फैक्टोरियल. ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इस तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ भी करूंगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा. इसको करूंगा x5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसको करूंगा x7 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स का एक्सपेंशन आ गया, एक्स क्यूब माइनस x5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, x7 अपॉन 5 फैक्टोरियल. और इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव फिर 0 नेगेटिव होगा. तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा. अगर मैं आगे एक्सपेक्टेड 2-4 और टर्म अपनी तरफ से लिख दूं, x3 है, फिर x5 है, फिर x7 है, तो x9 हो जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, फिर ये 7 फैक्टोरियल हो जाएगा. 2 फैक्टोरियल कम होंगे, 5 से 3 हो जाएगा, 7 से 5 हो जाएगा और 3 से 1 हो जाएगा. इसी तरह इसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा, x11 आ जाएगा अपॉन 9 फैक्टोरियल, फिर नेगेटिव आ जाएगा x13 एंड सो ऑन. तो ये इसका एक्सपेंशन आ गया, एक्स क्यूब माइनस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, x5 upon 3 factorial, x7 upon 5 factorial, minus x9 upon 7 factorial, x11 upon 9 factorial, and so on. So this is the expansion of x square sin x. x square का मैंने expand नहीं किया क्योंकि इसका आंसर यही आता है, इसलिए मुझे पता है इसका आंसर यही आता है क्योंकि हम पहले एक क्वेश्चन अलजेब्रिक क्वेश्चन देख चुके हैं. x4 माइनस 12 एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 4 का इस किस्म का कोई क्वेश्चन था जिसका वही एक्सपेंशन वही आया था. तो इसलिए मैंने इसको एक्सपेंड नहीं किया, तो इसको एक्सपेंड करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यही आएगा आंसर. साइन एक्स को सिर्फ एक्सपेंड किया, इसका आंसर ये आया है, एक्सपेंड हुआ है. तो फिर उसको दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से इस तरफ भी और इस तरफ भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप मैंने छोड़ दिया मल्टीप्लाई करने वाला, इसको डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया. तो इस तरह बेटा ये करना है. तो हमने तो ये मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, आपका टाइम भी हो गया है और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं शुरू कर भी दूं तो वो कंप्लीट होगा नहीं क्योंकि 3 मिनट रह गए हैं सिर्फ, 3 मिनट 14 सेकेंड, उसमें क्वेश्चन होगा नहीं, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहा. यहीं पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और आप लोग सब समझ गए इसको. कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए आप.
और मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। आज मैं असाइनमेंट 2 अपलोड करूंगा और नेक्स्ट वीक में आपका क्विज होगा। सर जी बेटा बोलिए। सर क्विज के हवाले से आप एक बोलना है कि हम पहले से तैयारी कर लेंगे नेट जी वगैरह की और इलेक्ट्रिसिटी का। जी, आप सर एलएमएस को देख लीजिएगा सर, अगर एलएमएस बीच में डाउन हो गया तो सर आप। वो तो सबके लिए होगा बेटा, फिर उसमें कुछ देखेंगे, सबके लिए जो चीज होगी ना वो तो मेरे लिए भी होगा। वो तो मैं ठीक है भी सर। हूँगा ना एलएमएस पे, वो तो सबके लिए होगा फिर। तो उसके लिए कुछ ना कुछ फिर करेंगे, ऑल्टरनेट कुछ करेंगे। ठीक है ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो ये लेकिन अपनी आपने तैयारी करनी है, एक एक बंदे के लिए अलग अलग चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे लिए बेटा बहुत मुश्किल होता है ईमेल पे वो चेक करना, बहुत मुश्किल होता है तलाश करना। कभी वो जंक में चला जाएगा, कभी वो अदर्स में चला जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा। और ये आपका ये भी होना चाहिए कि फाइल आपकी ओपन होनी चाहिए पीडीएफ में, किसी और प्रोग्राम में नहीं। और प्रोग्राम नहीं होते मेरे पास, पीडीएफ में होता है, वो एलएमएस पे भी ओपन होगा, मेरे पास भी ओपन होगा। वो प्रोग्राम होना चाहिए सबके लिए वो हो। तो ये आपने करना है, वो फाइल ओपनेबल हो, ओपन हो जाए वो, और आपने उसको अपनी तैयारी करके रखनी है। तो एलएमएस पे आपने उसको अपलोड करना है। और ये भी मैं बता दूं कि क्विज में सिर्फ पहले दो, अगर वैसे तो उसमें आएंगे ही दो, अगर कोई दो नहीं आते तो आपने फर्स्ट 2 क्वेश्चन करने हैं, सब नहीं करने। क्विज में जितने भी क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन अपलोड करता हूं, उसमें वो मिक्स करके उसको शफल करके उसको जो है वो 2 क्वेश्चन आपको देगा। तो अगर वो 2 नहीं देता, ज्यादा देता है, आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो वो सबको ही ज्यादा नजर आएंगे। वो कुछ ऐसा अगर सिलसिला हुआ तो आपने पहले 2 करने हैं। आपने जो आपके पास आई है क्विजेस, उसमें आपने पहले 2 क्वेश्चन करने, ज्यादा नहीं करने बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो पहले 2 क्वेश्चन आपने उसमें करने, ये आप सबको बता दीजिएगा। वैसे तो आएंगे ही 2 इंशाल्लाह, लेकिन अगर नहीं आते एग्जाम में भी, जैसे मैंने 15 क्वेश्चन में से आपके पास 10 आए, वो 7 आए थे, कितने आए थे, जो भी आए थे, 6 आए, 5 आए थे 10 में से। 10 किए थे, उसमें से 5 आपके पास आए थे। इसी तरह इसमें भी 5 होंगे, उसमें से 2 आपके पास आएंगे, लेकिन वो आपके जो पहले 2 होंगे वही करने हैं आपने। जो पहले 2 होंगे वही करने हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।